everyone, welcome to my channel मिडको प्राइम एजुकेशन। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे हार्डी विनवर्स लॉ। एक टॉपिक के अंदर आता है पॉपुलेशन जेनेटिक्स। तो जब हम लोग पॉपुलेशन जेनेटिक्स पढ़ते हैं तो हार्डी विनवर्स लॉ आता है, ठीक है। अब इसमें पॉपुलेशन जेनेटिक्स मैं मोस्टली फोकस करूंगा हार्डी विनवर्स लॉ में, और इसके कुछ 10 क्वेश्चंस हैं, बहुत ही जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और इसके कॉन्सेप्ट के बारे में मैं बात करके इस वीडियो को ख़त्म करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो ध्यान में रखनी होती है, जो डायरेक्ट एज ए एग्जाम में आ सकता है, तो उसके बारे में बात करते हैं। फर्स्टली बात करते हैं पॉपुलेशन जेनेटिक्स। देन फर्स्टली पॉपुलेशन जेनेटिक्स मीन्स स्टडी ऑफ जेनेटिक्स एट population level okay, means genetics at population level means genes या allele frequency, we have to focus on gene or allelic frequency and multiple allelism and nature of the genes. Means at population level we also studies in multiple allelism, we also studies what? Multiple allelism, we also studies multiple allelism and nature of gene, okay, and gene frequency or allele frequency, gene frequency and allele frequency, okay. Then these 3 points we study in the genetics at the population level. Now we are going to discuss about gene flow, gene pool and genetic load. These are the some concepts we have to remember. These may be come in the directly in the statement based questions, so you have to remember in your mind. Firstly, what is gene flow? Gene flow is the migration of gene. Means flow means what? Means flow. Gene flow is the migration of gene from one population to other population. Means migration of gene, कहाँ से? वन पॉपुलेशन, एक पॉपुलेशन से। means if we donate population as a B, then one population to other population means P2, okay. Then other population by which method? Random mating is basically cross fertilization. What? Cross fertilization, okay. Then you have to remember like that, migration of the gene from one population to another population by random mating, okay. Now what is gene pool? Gene pool is the sum of the gene in a reproductive gametes of a population. मतलब पूरे पॉपुलेशन में जितना भी रिप्रोडक्टिव गैमेट्स सभी जीन को मिला के क्या बोलते हैं? जीन पूल बोलते हैं। मतलब जितने भी पॉपुलेशन में जितने सेट ऑफ एलील्स होते हैं ना, सबको जीन पूल बोल सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं इसमें? सम ऑफ, ऐसे लिखो, सम टोटल ऑफ gene in reproductive gametes of a population, okay. And you can also define as set of allele at all loci in a population, okay. I've understood. So these are the points you have to remember. And what is genetic load? Genetic load is the presence of recessive allele in heterozygous condition. Have you understood? Presence of recessive allele. All those in a population there are many recessive alleles and is there, and you have, and the recessive alleles presence is in heterozygous condition, mostly in heterozygous condition, not in homozygous. Means presence of recessive allele in heterozygous condition, okay, in heterozygous condition.
तो अगर बात करो कि अगर डोमिनेंट एलील है तो पॉपुलेशन से एलिमिनेट हो सकता है, रेसेसिव एलील एलिमिनेट नहीं हो सकता थ्योरेटिकली। जो रेसेसिव एलील है वो आपस में देखो जो डोमिनेंट एलील है वो आपस में वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है, ठीक है, तो एलिमिनेट हो सकता है, पॉपुलेशन से बाहर जा सकता है, ठीक है। लेकिन जो रेसेसिव एलील है वो आपस में दूसरे से एलिमिनेट नहीं हो सकता, क्योंकि वो रेसेसिव है, वो अपने ही कंडीशन में रहेगा, वो एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, इसलिए पॉपुलेशन में एलिमिनेट नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये बात इसमें ध्यान रखनी है। मतलब प्रेजेंस ऑफ रेलिन हेट्रोजाइगस कंडीशन, इसका मतलब क्या होता है जेनेटिक लोड में कि जो स्मॉलर पॉपुलेशन होता है, ठीक है, उसमें अगर पॉपुलेशन अगर स्मॉलर हो तो जो स्मॉलर पॉपुलेशन होता है उसमें लार्ज चेंज इन द जीन एंड एलील फ्रीक्वेंसी होता है। ये स्मॉलर पॉपुलेशन है, यहाँ पे एक पॉपुलेशन में एक स्पेसी एक स्पेसी एक स्पेसी ये आपस में अच्छे से मेटिंग कर सकते हैं आराम से, ठीक है। लेकिन एक एक स्पेसीज यहाँ एक स्पेसीज यहाँ तो पॉपुलेशन बढ़ा है, ठीक है, इसमें जीन चेंज का जीन अलील फ्रीक्वेंसी इसमें चेंज होने की ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन जो पॉपुलेशन लार्ज है उसमें स्मॉल चेंज या जीन अलील फ्रीक्वेंसी होगा, मतलब जीन में चेंज होने की फ्रीक्वेंसी कम होगा क्योंकि रैंडम मेटिंग इसमें कम हो पाएगा, ठीक है। तो ये इस पर ध्यान में रखना कि स्मॉलर पॉपुलेशन लार्ज चेंज इन द जीन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि अब बेसिकली जीन फ्रीक्वेंसी का यहाँ पे बात आया, तो भाई विनवर्स लॉ विंसबर्ग लॉ आता कहाँ से है? जीन फ्रीक्वेंसी को ही कैलकुलेट करने के लिए विंसबर्ग लॉ यहाँ पे एप्लीकेबल होता है, ठीक है। तो भाई विंसबर्ग लॉ तभी एप्लीकेबल होता है जीन फ्रीक्वेंसी स्मॉल साइज भी होना चाहिए इन अ लार्ज रैंडम मेटिंग पॉपुलेशन, लार्ज रैंडम मेटिंग पॉपुलेशन, पॉपुलेशन लार्ज होगा, ठीक है, लार्जर पॉपुलेशन, स्मॉल चेंज इन द जीन फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मॉल होना चाहिए, मतलब स्मॉल या फिर रिमेन्स कांस्टेंट, कांस्टेंट जनरेशन आफ्टर जनरेशन व्हेन देयर इज अ नो और नेग्लिजिबल म्यूटेशन एंड माइग्रेशन सिलेक्शन। तो ये सब अगर नहीं हो तो रैंडम फ्रीक्वेंसी ऑफ जीन एलील फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ जीन या एलील का फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट जनरेशन आफ्टर जनरेशन, अगर कोई म्यूटेशन नहीं हो, माइग्रेशन नहीं हो या नेचुरल नहीं हो। तो मैंने बताया कि कांस्टेंट होना चाहिए, पर कितना होना चाहिए? अगर मान लेते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ द डोमिनेंट एलील को p मान लेते हैं एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेसेसिव एलील को अगर q मान लेते हैं तो p प्लस क्यू इज इक्वल टू 1 मीन्स कांस्टेंट। अगर इसी का होल स्क्वायर कर दे तो ठीक है, तो ये बन के आ जाएगा, ठीक है, पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 1। ये हमारा इक्वेशन है विंसबर्ग लॉ का, ठीक है। तो ये इक्वेशन है विंसबर्ग लॉ का, ठीक है। अब बताओ एक चीज में बताओ, एक कुछ क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे जो कि डायरेक्टली पूछ सकते हैं। डोमिनेंट ऑर्गेनिज्म का बात करें, डोमिनेंट ऑर्गेनिज्म इसमें कौन कौन हो सकता है? एक पी स्क्वायर प्लस 2pq हो सकता है, तो यहाँ लिख लो पी स्क्वायर प्लस 2pq, पी स्क्वायर प्लस 2pq, आई बात समझ में? एंड होमोजाइगस ऑर्गेनिज्म कौन हो सकता है? एक तो ये होमोजाइगस है, रेसेसिव या डोमिनेंट नहीं बोला, बस होमोजाइगस बोल रहा है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर हो सकता है, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। हेट्रोजाइगस ऑर्गेनिज्म कौन होगा? हेट्रोजाइगस 2pq, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। चलो अब बात बताओ कि कंडीशन फॉर दिस लॉ क्या होना चाहिए? ये एज ए एमसीक्यू आता है, ठीक है, ये एमसीक्यू। क्रोमोसोमल वेरिएशन एंड रैंडम मेटिंग प्रेजेंट होना चाहिए, मतलब रैंडम मेटिंग करेंगे तो भी तो वेरिएशन आता है, ठीक है। अब सेम स्पेसीज से ही करता है, ठीक है, मेटिंग। तो कोई जेनेटिक कॉम्बिनेशन भी नहीं होना चाहिए, नो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, नो जेनेटिक ड्रिफ्ट, नो नेचुरल सिलेक्शन, नो जीन फ्लो म्यूटेशन, इनफाइनाइट लार्ज पॉपुलेशन साइज होनी चाहिए, ठीक है। अब बताओ, अब एक छोटी सी बात करते हैं हम यहाँ पे कि भाई इक्वेशन ये तो हमारा दिया हुआ है, ठीक है, ये इक्वेशन है हमारा, और इस इक्वेशन में हमें बताओ ये पी स्क्वायर क्या है? पी स्क्वायर जो अभी मैंने बोला कि होमोजाइगस डोमिनेंट, इसको क्या बोल सकते हैं? होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस, ये लिख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी से सॉल्व होता है, ठीक है। इसमें देखो मैं बता रहा हूँ, एक तो न्यूमेरिकल आ सकता है, ठीक है, या तो एक इस पे क्वेश्चन बन के आ सकता है, ठीक है, कौन सा इसमें कंडीशन नहीं है, ठीक है।
ऐसे दे सकता है, या तो अगर ये आएगा क्या कहते हैं न्यूमेरिकल आएगा तो ये क्वेश्चन दे सकता है, ठीक है। और तुम्हें ये इक्वेशन याद डायरेक्ट भी दे सकता है, और क्या होता है विंसबर्ग लॉ ये दे सकता है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो बेसिक देखो मैंने इतने सारे क्वेश्चन इसमें फिट किए हैं, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन को करेंगे आज अच्छे से, और एक टॉपिक तुम्हारा एकदम होने वाला है, ठीक। तो देखते जाओ बस। इसे कहते हैं होमोजाइगस डोमिनेंट ऑर्गेनिज्म, ठीक है। या तो ऑर्गेनिज्म बोल दो, ठीक है, या फिर जीनोटाइप बोल दो, ठीक है, या फिर फिनोटाइप बोल दो, ठीक है। डोमिनेंट ऑर्गेनिज्म बोल दो, फिनोटाइप बोल दो, जीनोटाइप बोल दो। मैं ये बार बार लिखूंगा नहीं, तुम समझ। अब हेट्रोजाइगस डोमिनेंट, ठीक है, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट ऑर्गेनिज्म बोल दो, जीनोटाइप बोल दो, फिनोटाइप बोल दो, ठीक है, कुछ भी बोल दो। क्यू स्क्वायर को क्या बोल सकते हैं? क्यू स्क्वायर इज होमोजाइगस, होमोजाइगस, वेरी गुड, रेसेसिव ऑर्गेनिज्म बोल दो, जीनोटाइप बोल दो, या फिनोटाइप बोल दो। अब एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि नोट डाउन करने वाली है। देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर्स इन पॉपुलेशन, एक बार क्वेश्चन में ये आ चुका है, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखना, ये आ चुका है पहले। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर्स इन पॉपुलेशन, अब कैरियर्स होगा तो हेट्रोजाइगस होगा ना कैरियर। तुम बताओ कि ये अगर सिकल सेल एनीमिया होता था तो कैपिटल ए स्मॉल ए होता था, तो ये कैरियर अफेक्टेड बट कैरियर तो होता था ना। तो वही है इसमें बात। तो कैरियर होगा, कैरियर इन अ पॉपुलेशन, देन हेट्रोजाइगस ऑर्गेनिज्म होगा कि नहीं होगा? हेट्रोजाइगस ऑर्गेनिज्म, मतलब इसको क्या लिख सकते हैं? 2pq के बराबर लिख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब भाई तुम इतना रामायण पढ़ लिया, ठीक है, और तुम्हें ये नहीं आ रहा, क्वेश्चन ये आ गया कभी, तो ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन में सबसे पहले कर रहा है पॉपुलेशन ऑफ रेसेसिव एलील, रेसेसिव एलील के लिए कैरेक्टर 80% है, ठीक है बात। रेसेसिव एलील के लिए कैरेक्टर 80% है, तो हमें फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट। तो सबसे पहले बताओ फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील क्या था? फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, ठीक है, नॉट लाइक ऑर्गेनिज्म, ये सब नहीं पूछा। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मतलब डोमिनेंट एलील के लिए पी होता था। फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट ऑर्गेनिज्म के लिए ई स्क्वायर हो सकता है। होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस डोमिनेंट एलील दिया है, यहाँ पे ऑर्गेनिज्म दिया है, बात में ध्यान रखना, बात को ध्यान में रखना, पी स्क्वायर मत फाइंड कर देना। एलील रहे तो एक, ठीक है, ऑर्गेनिज्म दिया है तो पी स्क्वायर। फ्रीक्वेंसी ऑफ हेट्रोजाइगस डोमिनेंट ऑर्गेनिज्म क्या लिख सकते हैं? हेट्रोजाइगस मतलब 2pq हमें फाइंड करना है। पर हमें क्या दिया है? रेसेसिव एलील का फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 80%। यहाँ से पता क्या चल रहा है कि 80% क्या दिया हुआ है, मतलब हमारे पास Q जो है वो 80% का मतलब क्या हो गया? 0.8 है ना। Q हमें 0.8 दिया हुआ है, तो P प्लस Q क्या होता था? 1, देन P प्लस 0.8 इज इक्वल टू 1, देन P इज इक्वल टू 0.2, है ना बात, ठीक है। तो P हमारा निकल गया 0.2, आ गया आंसर। पी स्क्वायर क्या हो जाएगा? 0.04, है ना, और 2p क्या हो जाएगा? 2 इंटू वट 0.8 इंटू 0.2 इज इक्वल टू 0.32। ठीक है क्वेश्चन। चलो अब ये फर्स्ट क्वेश्चन था, ये सेकेंड क्वेश्चन, और ये थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। तो सेकेंड क्वेश्चन में अब बोल रहा है कि इन अ पॉपुलेशन of 200 individuals 72 are homozygous recessive for character, then what is the frequency of dominant allele in that population? 72 are homozygous recessive, पता 72 और होमोजाइगस रेसेसिव मतलब, होमोजाइगस रेसेसिव मतलब ये क्या दिया हुआ है? क्यू स्क्वायर दिया है, मतलब 200 में से तो 72
इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर है, ठीक है। मतलब क्यू स्क्वायर कितना दिया हुआ है, 72/200 इज इक्वल टू 36/100 इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर कितना आ जाएगा 0.36, मतलब क्यू इज इक्वल टू 0.36, ठीक है। क्यू इज इक्वल टू 0.6, ये हमारा है। तो हमें फाइंड क्या करना है, फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील फाइंड करना है, डोमिनेंट ऑर्गेनिज्म नहीं। मैं बार बार ये बात को बोल, गलत हो सकता है डोमिनेंट, लेकिन ये तो रेसेसिव मेरा निकला ना, ठीक है, ये फॉर रेसेसिव के लिए है। लेकिन डोमिनेंट ऑर्गेनिज्म के लिए क्या लिख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट ऑर्गेनिज्म इज इक्वल टू पी, एंड पी इज इक्वल टू 0.4, 1 माइनस 0.6 कितना होता है भाई, 0.4 होता है। तो ऐसे इसे फाइंड करना। एक और उस टाइप का, if 98 out of 200 individual in a population express its recessive phenotype, express its recessive phenotype, यहाँ पे phenotype दिया हुआ है, एलील नहीं दिया है, तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, जैसे कि क्यू स्क्वायर रेसेसिव फिनोटाइप है ना, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 98 कितने में 200 में, ये कितना हो जाएगा 0.4, ये बात समझ में आई। जब पॉइंट, तो क्यू कितना हो जाएगा 0.7, ठीक है। पी कितना हो जाएगा 1 माइनस 0.7 इज इक्वल टू 0.3, बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब पूछ क्या रहा है, व्हाट परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन, देखो कुछ भी करना है पी और क्यू निकाल लो, ठीक है, बाकी आगे जो पूछना है वो 1 मिनट में निकल जाता है। वुड बी प्रेडिक्ट टू बी हेट्रोजाइगस, कितना परसेंटेज हेट्रोजाइगस हो सकता है, तो हेट्रोजाइगस के लिए क्या लिख सकते हैं, हेट्रोजाइगस अरे 2pq, ठीक है, 2 इंटू 0.3 इंटू 0.7 इज इक्वल टू 0.42, इसका मतलब 42% होता है, ठीक है। समझ में आई बात। चलो क्वेश्चन नंबर 4 का, 4 में ना पॉपुलेशन ऑफ 1000 इंडिविजुअल 360 belongs to genotype A, 480 belongs to genotype A, and remaining 160 belongs to genotype small a। तो हमें बताओ कि सबसे पहले 160 स्मॉल ए कितना दिया हुआ, होमोजाइगस रिसेसिव, होमोजाइगस रिसेसिव कितना है, ए इज इक्वल टू 36%, 360 belongs to genotype A and 160 belongs to 160 बिलोंग्स टू परसेंटेज, ये 36 है, तो मतलब ए इज इक्वल टू कितना हो सकता है, ए कैपिटल स्मॉल ए इज इक्वल टू कितना होगा, अरे स्मॉल ए इज इक्वल टू हो जाएगा 0.36, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.6, ठीक है। तो जब स्मॉल ए है, ये तो होमोजाइगस है ना, सॉरी ये रेसेसिव है ना, डोमिनेंट क्या हो जाएगा, डोमिनेंट कैपिटल ए हो जाएगा 0.4, और हमें फाइंड क्या करना है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील ए इन अ पॉपुलेशन का फ्रीक्वेंसी कितना आ रहा है 0.0, इन अ पॉपुलेशन, इन अ लार्ज पॉपुलेशन, देखो यहाँ लार्ज पॉपुलेशन दिया हुआ है, ठीक, तो समझ जाना हार्डी विंसो लॉ लग रहा है। फ्रीक्वेंसी ऑफ रेसेसिव एलील इज 0.7, अब रेसेसिव एलील का फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, एलील पॉइंट द वर्ड मार्क अलील, एलील का फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है रेसेसिव का, तो क्यू दिया हुआ है 0.7, देन फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट ऑर्गेनिज्म, होमोजाइगस डोमिनेंट ऑर्गेनिज्म का मतलब होमोजाइगस भी है और डोमिनेंट भी है, मतलब पी स्क्वायर,
ये क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई करो, ये दूसरे तरीके से मैं बता, जैसे ये भी है सही बट मैं इसको दूसरे तरह से बता रहा हूँ, ठीक है। चलो थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन आ रही होगी क्योंकि ये मैं डायरेक्ट बता दिया हूँ। देखो सबसे पहले मुझे बताओ कि कैपिटल ए के लिए कितना है 360 और कैपिटल ए स्मॉल ए के लिए कितना है 480, है ना। ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है एंड ये 160 है। तो टोटल ए कितना हो जाएगा, टोटल कैपिटल ए कितना हो जाएगा 360 इंटू 2, ठीक है ये 2 है, प्लस 480 इंटू इसमें कितना है 480 में 1 एक अलील ए कैपिटल ए 1 है, ठीक है, प्लस और इसमें स्मॉल ए वाले में 0 है, ठीक है। तो इसको टोटल करेंगे तो इसमें 1200 आ रहा है बराबर। और टोटल स्मॉल ए कितना हो जाएगा 160 इंटू 2 प्लस 480 इंटू 1 मतलब 800 आ रहा है। तो टोटल एलील कितना हो गया, टोटल एलील 2000 हो गया, ठीक है, टोटल एलील 2000 हो गया। बट हमें फ्रीक्वेंसी किसका निकालना है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ए। तो मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ ए के लिए कितना था 1200 अपॉन टोटल कितना है 2000 इज इक्वल टू 0.6 एंड अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मॉल ए भी निकालने को बोले तो ये भी निकाल सकता हूँ मैं 2000 अपॉन 2000, ठीक है। इसको क्या ले सकते हैं 0.4, ठीक है। मैं पहले स्मॉल ए का निकाल दिया था, ये इसका तरीका है। चलो अब ये बताओ इन अ लार्ज फ्रीक्वेंसी ऑफ पॉपुलेशन 0.7 द फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट मतलब क्यू स्क्वायर हमें फाइंड करना, सॉरी पी स्क्वायर फाइंड करना। एक बार ट्राई करो खुद से, ना यार पी स्क्वायर है क्यू दिया तो पी निकल जाएगा ना 0.3 हो गया, 0.3 का स्क्वायर कितना होता है 0.09। ये क्वेश्चन नीट में आ चुका है, ये बातें हमें इसमें डिजीज का नाम लेके घुमा फिरा रहा है, बाकी काम वही। फाइंड आउट द नंबर ऑफ कैरियर, मैं बस बोला था ना नंबर ऑफ कैरियर आ चुका है। तो नंबर ऑफ कैरियर का मतलब क्या होगा, चलो मैं बताऊँ। रैंडम मेटिंग पॉपुलेशन ऑफ 10,000 इंडिविजुअल 10,000 इंडिविजुअल 36% आर एल्बिनिक कैन फाइंड आउट द कैरियर एंड अब 36% एल्बिनिक है। अब एल्बिनिज्म, अब देखो अब जिसको जिसको पता होगा एल्बिनिज्म इज अ ऑटोसोमल, बोलो बोलो, ऑटोसोमल रेसेसिव डिजीज। क्या है ऑटोसोमल रेसेसिव डिजीज। ऑटोसोमल रेसेसिव डिजीज है तो कैपिटल ए क्या होगा नॉर्मल होगा ना, कैपिटल होगा नॉर्मल, ठीक है। कैपिटल ए स्मॉल ए क्या होगा नॉर्मल बट कैरियर। मतलब ये बताओ ये साफ साफ तुम्हें दे रहा है कि ये पी स्क्वायर है और ये 2pq है, ये है ना भाई, इससे डोनेशन तो यही होता है। स्मॉल ए बताओ अफेक्टेड है, काम नहीं कर रहा, अफेक्टेड है मतलब एल्बिनिक है, ठीक है, ये एल्बिनिक है तो मतलब ये क्यू स्क्वायर है। मतलब ऑटोसोमल रेसेसिव है मतलब रेसेसिव कंडीशन में अफेक्टेड होगा ना, तो ये हमारा रेसेसिव कंडीशन है तो इसमें अफेक्टेड होगा एल्बिनिज्म होगा। तो 36% और एल्बिनिक है मतलब क्यू स्क्वायर क्या दिया हुआ है 36%, मतलब क्यू स्क्वायर 36% का मतलब क्या होगा 0.36, ठीक है। तो मतलब क्यू इज इक्वल टू कितना लिख सकते हैं 0.6, ये बात यहाँ, ठीक है भाई। पी भी झट से निकल जाएगा 0.4, 1 माइनस 0.6 क्या होता है 0.4 ही होता है मेरे अकॉर्डिंग तो।
हमें फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ कैरियर। नंबर ऑफ कैरियर क्या था, 2pq था ना, ठीक है। तो हमें फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ कैरियर। अब ये क्वेश्चन आ गया तो सभी क्वेश्चन तुम्हें आराम से बन जाएगा, बाकी कुछ नहीं आता इसमें। 2pq हो जाएगा, मतलब 2 इंटू 0.6 इंटू 0.4 इज इक्वल टू कितना आ गया, कितना हो जाएगा फिर 0.48। पर हमें ये फ्रीक्वेंसी निकालना है ना, नंबर निकालने के लिए क्या, नंबर निकालने के लिए टोटल गुना करना पड़ेगा, इसको क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10,000 से, तो इंटू 10,000, तो ये कितना हो जाएगा, ठीक है। नंबर कर रहा है ना, फ्रीक्वेंसी नहीं कर रहा है, फ्रीक्वेंसी नहीं बोल रहा निकालने को। नॉर्मल इंडिविजुअल कितना हो जाएगा, नॉर्मल इंडिविजुअल बताओ कितना। नॉर्मल इंडिविजुअल, यहाँ नॉर्मल का बात होता है। नॉर्मल ये भी है पी स्क्वायर प्लस 2pq, ये नहीं कि सिर्फ ये नहीं, पी स्क्वायर प्लस 2pq। तो पी स्क्वायर कितना हो सकता है, एक मिनट, नाउ तो बताओ यहाँ पे पी स्क्वायर क्या होगा, पी स्क्वायर 0.4 का स्क्वायर, 0.4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पी क्या होगा, पी 0.4 प्लस इंटू पॉइंट, ये तुम्हारा आ जाएगा 0.64 आ गया, ठीक है। और इसमें कितना से मल्टीप्लाई करोगे, 10,000, ठीक है भाई। 10,000 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6400 आएगा, यानी कि फ्रीक्वेंसी थोड़ी नंबर निकालने को बोल। आई बात समझ में, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये अच्छा क्वेश्चन। चलो ठीक है, अब इसको HW में करना, यस ऐसे बनता है फिर, इतनी है सेम। तो थैंक यू, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, और वीडियो को लाइक कर देना।